हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में करते नहीं, सुबह उठते हैं, ब्रश उठाते हैं, खच 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 खसते हैं और हमारा वही एक डेंटल केयर है, लेकिन फैक्ट वो चीज़ नहीं है, राइट? लोगों को ओरल कैंसर के बारे में नहीं पता है कि क्या क्या ये सब चीजों को खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब पीपल्स आर नॉट अवेयर इन इंडिया। देयर इज सो मच ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया। What is the link between the stress and oral health? Stress plays a very vital role in oral health. Suppose if a patient is taking anxiety drugs or antidepressant drugs, so it reduces the saliva secretion in our body. So and saliva is antimicrobial. मतलब कहने का है कि जो patients antidepressants और anxiety की drugs लेते हैं वो decrease हो जाता है, और जो हमारा जो saliva है उसमें antimicrobial properties होती हैं, तो उनको dental decay होने के chance ज़्यादा हैं। Oral cancer, something which most of the people of India are not aware of. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी शायद मेरे हिसाब से नहीं है, और जिनको जानकारी है उनको पूरी जानकारी नहीं। डेंटल हाइजीन, अपने आप को डेंटल ओरली क्लीन कैसे रखना है, एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए, इन सब की एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन एजुकेशन शायद हम लोगों के पास इस वक्त नहीं है या फिर कमी है। So welcome to another episode of Gossip with Gray, and today we have a renowned person who is from the industry of dental care, and she is a doctor and she knows much more information about the dental hygiene and the oral cancer, the awareness which we are going to talk about, and she is going to share more and more information to all the people like us who was not aware of about all these things. So she'll be the guide for all of us. Let me introduce my guest tonight, डॉक्टर सबा उस्मानी। हाय, नमस्ते। नमस्ते सबा जी। जी। सो जो मैंने अभी बातें करी ओरल हाइजीन की या फिर ओरल कैंसर की या जो भी डेंटल रिलेटेड है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में करते नहीं, सुबह उठते हैं, ब्रश उठाते हैं, खच 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 खसते हैं और हमारा वही एक डेंटल केयर है, लेकिन फैक्ट वो चीज़ नहीं है, राइट? जी जी। तो इससे पहले कि हम उन सब चीज़ों में जाएं, सबा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को और आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या मेरा नाम डॉक्टर सबा उस्मानी है। आई एम अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन। आई हैव डन माय मास्टर्स इन डेंटिस्ट्री फ्रॉम ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लखनऊ, and I have worked in so many of the hospitals. Firstly, I have worked in Carrier Institute of Dental Sciences in Lucknow only as a lecturer. Okay. Yes. Then I joined Jamia Hamdard Majidia Hospital as a consultant dental surgeon. Which is in Delhi? In Delhi only, in South Delhi, Jamia Hamdard University. It is a very renowned university. It is. Yeah, now it's a medical college. Nowadays, medical college is running. And then I have worked with so many of the charitable centers like Imam Zainul Abidin, which is a charitable center located in Zakir Nagar. Yeah, Jamia Nagar, nearby Jamia Nagar, South Delhi. And I'm doing work with the NGO, that is the Raj Foundation, where I'm doing free dental checkup camps in school, colleges, in rural areas, in slum areas. We are distributing the medicines, we are distributing the notebooks and stationaries and all the things. And we are mainly working for the poor peoples, for the downtrodden peoples. Yes. जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी कि ये तो हुआ जो आप काम कर रहे हैं। And I have worked with the Navshrishti organization also. As this is the NGO Navshrishti. Yes. So वही मैं जैसे आप, ये तो हुआ आपका काम जो आप कर रहे हैं, जो आपने पढ़ाई करी बचपन से लेकर अब तक, अब आप प्रोफेशनल बन। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में ये एक बात हमेशा से रही है जो मुझे लगता है कि आपको आवाम के लिए कुछ करना है। जी, बिल्कुल। राइट, ये थॉट आपके मन में है। मैंने कई बार आपसे बात भी करी है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आपको काम करना तो बहुत पैशनेट है, लेकिन आप उससे एक लेवल अप होना चाहते हैं, जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है सबा, टू बी। जी। तो जो आपने नोबल कॉसेस के बारे में बात करी, राज फाउंडेशन, आपने एक और एनजीओ का नाम लिया और उसके साथ आप काम कर चुके हैं। मैं कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। जी। ये तो obviously it's a charitable thing. Yes. Nobody is paying for you for this. And आपका मन भी नहीं है कि यार मुझे पे नहीं चाहिए, but मुझे हेल्प करनी।
हेल्प करनी है लोगों की. लोगों की हेल्प करनी है. एंड इवन आई हैव टू स्प्रेड द डेंटल अवेयरनेस ऑल्सो. राइट. मेन चीज़ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. लोग डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं. लोगों को ओरल कैंसर के बारे में नहीं पता है कि क्या क्या ये सब चीज़ों को खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. मतलब पीपल्स आर नॉट अवेयर in India. There is so much of illiteracy in India. Exactly. But when it comes to dental knowledge, Yes. बहुत कम लोगों को उस चीज़ की जानकारी है. जी. दूसरी बात यह है कि जानकारी क्यों कम है, कभी आपने सोचा है? इस वजह से भी है क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और लोग जानकारी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं. आई But थिंक मुझे ऐसा लगता है सबब the people don't invest in all these things. The people don't invest their time in gaining knowledge. I think so. that is And हाँ, मैं ये बहुत मान सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है, लेकिन जी. कुछ बच्चे या फिर कुछ परसेंटेज द यंग जनरेशन, the Gen Zs, they are very good with the mobile phones, the computer, the search engine and everything. They search most of the thing. जी. लेकिन जहाँ हम डेंटल की बात करें, जी. जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनको भी नॉलेज नहीं है. ये भी एक पॉइंट. ये भी एक पॉइंट है. अगर आप समझ के चलो, जी. आप तो डॉक्टर है, आपको तो इन एंड आउट पता है. आप मेरा एग्जाम्पल लो या फिर किसी और का एग्जाम्पल लो जो पढ़ा लिखा लेकिन शायद मुझे नहीं पता होगा, अच्छा ये एक ऐसी प्रोडक्ट है फूड का जिसको खाने के बाद मेरे दांत को खराबी हो सकती है. मैं अवेयर ही नहीं हूँ और मैं कंटिन्यूसली करूँ. लेट्स से मे बी अ कप ऑफ कॉफी, मे बी आई टेक 10 cups of coffee in a day, which is शुगर इनटेक. शुगर इनटेक हो रहा है या जो भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अवेयर नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस बड़े लेवल पे हो नहीं रही है. अगर लोग और लोग आ नहीं रहे हैं आगे. लोग आ नहीं रहे. जैसे कि अभी आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है. जी. यार मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है और दिन पर दिन मैं बढ़ाती चली जा रही हूँ. लोगों को अवेयर करती चली जा रही हूँ about the oral cancer as well as about the dental hygiene. We are going in the slum areas. We are going to the school colleges. We are teaching the students. और उनको हम सब प्रैक्टिकली भी बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से नुकसान है, हमें ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये भी हम उनको बताते हैं. तो फिर ये पॉडकास्ट तो बड़ा अच्छा होने वाला है क्योंकि जी. मैं आपके पास कुछ सवाल लेके आया हूँ. जी. जी. मैंने और मेरी टीम ने हमने थोड़ा बहुत सर्च करा है कि क्या वो सवाल हो सकते हैं जो हम आपसे आज इस पॉडकास्ट में पूछे, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है. जी. ठीक है, और आप एक प्रोफेशनल है. जी. और आपसे बेहतर और आप जैसे कई सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे वो आपसे सहमत भी करेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा जो लोग इस चीज़ के बारे में जिनको अवेयरनेस नहीं है उनके लिए एक एज अ गाइड माना जाएगा. जो सबा आप आज जो हमें एजुकेशन देने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छे गाइड करूं. एग्जैक्टली. तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. यस, थैंक यू फॉर दैट. एंड बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्या हम सवालों पे जा सकते हैं? बिल्कुल श्योर जा सकते हैं. जी बिल्कुल. सो stay tuned guys, I have so many questions lined up here जो मुझे डॉक्टर सबा उस्मानी से आज पूछने हैं, जो कि सारा का सारा डेंटल से रिलेटेड है. और कुछ सवाल मेरी टीम ने मेरे पास आके दिया है जो मेरे पास सामने इस मोबाइल फ़ोन पे है, तो मैं यहाँ से देख के आपसे पूछ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी. जो मैं भी जानना चाहता हूँ जब ये क्वेश्चंस हम निकाल रहे थे. और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी को भी सपोज दांतों का दर्द हुआ तो लोग केमिस्ट के पास जाके 2-4 रुपए की दवा ले लेते हैं. Exactly. और उसको खा लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे दांतों के दर्द में आराम हो गया. ये तो मैं खुद भी करता हूँ. लेकिन उनको जाके डेंटल चेकअप अपना कराना चाहिए कि कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. अच्छा, मैंने ना एक चीज़ और की है, सॉरी टू कट इन बिटवीन. जब मैं जैसे हम इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ जब हम देखते हैं तो उनका कल्चर हमें यहाँ पे समझ में आता है. अब वो मूवी का पार्ट नहीं होता है जी. लेकिन उनके एक कल्चर हमें समझ में आता है. जैसे अब हमें पता है कि वो स्कूल में कैसे जाते हैं, हमें पता है कि उनके स्कूल में लॉकर्स अलग अलग होते हैं. इंडिया में वो सिस्टम नहीं है, तो वो कल्चर हमें दिख गया. कहाँ से लिखा? मूवी के थ्रू दिख गया. ऐसे ही मैंने देखा है कि कई मूवीज में, मैक्सिमम मूवीज में उनका जनरल वो लोग टॉप कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उनका एक लाइन जरूर आता है, यू नो व्हाट, I'll see you tomorrow, I have an appointment with my dentist. Oh, you're going to go for the dentist? Yes. Yeah, it's a routine. It's a routine for them. उन लोगों के, but we are not following these things. Following that. तो मैं भी ये सोचता हूँ यार, डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है. मैं जब छोटा था देखता ये डेंटिस्ट क्या करते हैं. जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं देखा, जब मैं
अब लोगों को जाना पहचाना तो मुझे पता है इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, इट्स अ वेरी part of their culture. इम्पोर्टेंट थिंग एवरी It's a part of their life. It's a part of their life. यस For to go for regularly for dental रेगुलरली visits, फॉर अ डेंटल dental checkup and dental visits. एग्जैक्टली कि कुछ उनको प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से है, मेरे एक फ्रेंड थे यूएस, जी। उन्होंने जब मेरी बात हुई थी बहुत साल पहले की बात है, तो यहाँ पर लिस्टरीन आता है माउथ वॉश, उसके आते हैं छोटे छोटे डब्बे, फिर आते हैं इतना बड़ा, फिर आते हैं इतना बड़ा, जी। सबसे बड़ा वाला यही होता जी। है। उन्होंने मुझे बताया कि यार इतने छोटे छोटे यहाँ पे यूज करते हैं, आप अगर यूएस वगैरह में आएंगे यू विल गेट 5 liters 5 लीटर का आपको कनस्तर मिलती है, कनस्तर मिलता है। बिल्कुल You will get 5 liters of 5 लीटर Listerine mouthwash होता है जो बंदा लेके जाता है अपने यूज के अपने लिए, use और के फैमिली के लिए तो 4-4 डब्बे ले जाए। 4 डब्बे ले जाता है। एंड दे आर इन देयर हैबिट ऑफ In their यूजिंग इट हाँ because they have to maintain their oral hygiene. एग्जैक्टली, They are very much aware of their oral Right. hygiene. Just as जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं एग्जैक्टली और अपने बॉडी पार्ट्स को साफ साफ करते हैं, करते वैसे हैं। हम अपने दांतों का भी ख्याल रखना हमारा भारत में वो जिम्मेदारी चीज़ हो है। नहीं रही है, इंडिया में है लेकिन ही नहीं। इंडिया में ये सारी चीजें है नहीं। अभी भी डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है, हॉस्पिटल्स की भी बहुत कमी है, और अभी क्या कहते हैं, अवेयरनेस तो है ही नहीं लोगों के अंदर बिल्कुल भी। वो हम- जो एक और जो थ्रेड से हाँ, डेंटल फ्लॉस कहते हैं उसको। क्रॉस कर वो भी हमें यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाना खाते समय खाना हमारे दांतों के बीच में इंटरडेंटल स्पेसेस के बीच में अटक जाता है। तो अगर हम उसको उससे नहीं निकालेंगे तो वो इजीली ब्रश से रिमूव नहीं होता है, तो फिर हमारे दांतों में डिके होता है, सड़न पैदा होती है। ऑल द नॉन वेजिटेरियंस आउट देयर जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो जो खाते हैं मटन, चिकन या फिर कोई और कुछ दे भी चीज मस्ट आप यूज खाते द हैं, डेंटल फ्लॉस। दे मस्ट यूज इट। एंड ये मेरा खुद का पर्सनल Even एक्सपीरियंस है, mouth आई wash स्टार्ट also. डूइंग दैट, क्योंकि मैं Yes, अब वो yes. करता हूँ वो चीज़ें। जी जी। मैं इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बहुत टफ है, बहुत इजी नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट में देखोगे इट इज अ पार्ट। छोटा बच्चा भी ऐसा छोटा बच्चा भी कर रहा है, इजीली कर रहा होता है easily कर कि रहा है। उनका उनका पार्ट है वो। Part अगर है, आप they are जब the तक part of सिखाएंगे their नहीं, lives. तब तक बच्चा सीखेगा कैसे सिंपल सी बात है। सही तो चलो सवालों का सिलसिला हम जी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि what exactly the dental hygiene is, what is the importance of dental hygiene, क्या आप उसके बारे में Dental hygiene is very important because dental hygiene, why it is important, because if we will not get into the dental hygiene, our tooth will decay. अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे और हमें हाइजीन के बारे में नहीं पता होगा तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, सड़न हो जाएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने दांतों की साफ सफाई रखना, डेंटल हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल जो दांत है हमारे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स इन mastication, स्पीच, डिग्लूटिशन एंड व्हाट यू कैन से, बिना हम दांत के खाना नहीं खा सकते। अगर हमारे दांत ही नहीं होंगे तो हम उनको चबा नहीं पाएंगे प्रॉपर, और फिर हमें क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो दांत हमारा एक बहुत वाइटल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। दोस्ती के लिए और भी इसको बड़ा इंपॉर्टेंट maintain- होता है ये, जी, कि स्माइल भी आप इसी से करते जी, हो। और एस्थेटिक्स में, फेशियल एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें दांतों को मेंटेन करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन। वी मस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे एट लीस्ट फॉर 2 minutes इन वन सेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब 2 मिनट आपको देने ही देने हैं जब आप Minimum, ब्रश ये मिनिमम है। हाँ, और सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है, और हर 6 महीने पे आपको अपना ब्रश बदल देना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हार्ड हो जाता है। और हमें बहुत सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, जनरली हाँ जनरली, क्योंकि अगर हम ज़्यादा विग्रसली ब्रश करेंगे तो हमारे जो दांत होगा उसमें एब्रेजन हो जाएगा। मतलब वो जो ऊपर की परत होती है दांतों की, इनेमल, वो हमारी झड़ जाएगी सारी। उसकी वजह से हमें डेंटल सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। तो हमेशा आप रेकमेंड कर रहे हो हाँ, कि सॉफ्ट वाली- ब्रिसल्स वाले ब्रश हमें क्योंकि use करने मार्केट के अंदर चाहिए। क्या होते हैं कि हम हार्ड पे- वाले भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करने चाहिए, और अच्छी कंपनी के लेने चाहिए। जैसे कि कोलगेट का आता है बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश, हाँ, ओरल बी का आता है, और हर 6 महीने पे आपको अपना ब्रश बदलना ही तो बदलना ये तो है। बेसिक चीज है ये जो तो आप कह रहे हैं basic कि भैया चीज़ 2 है। मिनट तो आप ब्रश ही करो, सॉफ्ट आप हाँ, use सुबह शाम करो, आपको ब्रश सुबह करना शाम है। करो आप। फिर दूसरी चीज़ है, स्पेशली फॉर द नॉन वेजिटेरियंस, जब हम नॉन वेज खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में राइट फंस जाता है। तो हमें इंटरडेंटल स्पेसेस में हमारे जो है फूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें डेंटल डिजीजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए उससे हमें रीजन बढ़ जाता है कि जी, आपके उसके लिए हमें oral डेंटल hygiene फ्लॉस, खराब है। इट्स वेरी एसेंशियल टू यूज़ द डेंटल फ्लॉस।
Then flossing is very necessary. Then third is use of mouthwash is very important because it Post brushing. post brushing, because it flushes out all the debris of the food which gets entangled in between the teeth. एक सवाल आ रहा था मेरे दिल में कि जब हम ये बात कर रहे हैं ब्रश वगैरह कर रहे हैं, एक और पॉइंट ये है कि मैंने अपने डेंटिस्ट ने मुझे बताया था कि आप जब भी ब्रश करें, ब्रश करने के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तक कुछ खाए नहीं। नहीं, ऐसा is तो that? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अब ब्रश करने के बाद आप आराम से खा पी सकते हैं। तुरंत हम खा सकते हाँ, तुरंत खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, लेकिन ये है कि जब पर भी आप कोई भी मील्स लें तो आप जो है कहते हैं कुल्ला करना नहीं भूलें, क्योंकि अक्सर जो है खाना जो है दांतों के बीच में फंस जाता है और उसकी वजह से सड़न हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है हमारा। आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, चाहे वो ब्रश बेच रहे हो या पेस्ट बेच रहे हो, उसमें वो लोग जो है कहानी और स्टोरी टेलिंग ज़्यादा बताते हैं कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को देखा और स्माइल करा और वो पट गया। स्माइल पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रादर देन जो चीज़ें अभी आप बता रही हैं हम लोगों को, जो एक्चुअली ऐड में बताना चाहिए कि भैया क्या खाने से क्या होता है, क्या पीने से क्या होता है और कैसे क्लीनिंग करनी चाहिए। आप और 2 मिनट में जी, और तीसरी बात ये है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट पे टोटल अटेंशन टू अवर डाइट। डू यू थिंक जो एडवर्टाइजमेंट है उसका नजरिया स्टोरी टेलिंग चेंज होने चाहिए और उनको मुद्दे पे थोड़ा सा हाँ मुद्दों पे आना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। पॉइंट बात करें कि मैं जज हम कर रहे हैं लॉजिक वो अभी बात क्या करनी दिखा रहे हैं, क्लोजअप का ऐड चल रहा है, वो लाल रंग का ऐसे वाला शर्ट पहन के आ जाएगा, लड़की भी रेड कलर का वजह और वो स्माइल करेंगे और वो सिर्फ स्माइल को बेचते हैं जी। कि आप ब्रश करोगे तो आपकी स्माइल अच्छी हो जाएगी, लेकिन फैक्ट वो नहीं। फैक्ट ये है कि मेन तो दांत हमारा चबाने के काम आता है, तो हमें उसको कैसे जो है कहते हैं मेंटेन करके रखना है, हमें उस पर एम्फेसाइज करना है। यही फर्क होता है कि अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास बैठे और आप उनसे उससे उस रिलेटेड चीजें अगर आप पूछते हो तो आपको एक रियल नॉलेज मिलती है और उसी को ही हम अवेयरनेस कहते हैं। जी, बढ़ते हैं। और डेंटल हाइजीन का एक और पार्ट है अबाउट द हेल्दी न्यूट्रिशन। हमें हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स है, प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी helps in the protein in the vitamin C helps in the immunity as well as collagen production, and collagen is a very important factor for maintaining the healthy gums. So vitamin C, because it contains what you can say, it helps in the prevention of scurvy also. Scurvy is a disease which occurs due to the deficiency of vitamin C. ब्लीडिंग गम्स जिसे हम कहते हैं। राइट। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। तो इस वजह से हम डेंटिस्ट उनको विटामिन सी की गोलियां देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं जो उनको डाइट से नहीं मिल पा रहा है, और उनको सजेस्ट करते हैं कि वो विटामिन सी वाले फ्रूट्स वगैरह खाएं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंजेस है, ये सारी चीज़ें। वाटरमेलन वगैरह में विटामिन सी होता है, कीवी में होता है बहुत ज़्यादा विटामिन सी। ये सारी चीज़ें हम उनको सजेस्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी गम्स। देन विटामिन डी की कमी की वजह से भी लोगों के दांत खराब हो जाते हैं। कैल्शियम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम, और वो कैल्शियम जो है हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलता है। पनीर है और दूध है, इन सब चीज़ों में मिलता है। देन विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम तो हम ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो हमारी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा वो विटामिन डी की वजह की कमी की वजह से नहीं होगा। तो विटामिन डी भी हमको लेना चाहिए, जो कि फिशेज़ है, एग्स वगैरह में हमको मिलते हैं और नट्स वगैरह में मिलते हैं हमें विटामिन डी। ये सब न्यूट्रिशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी गम्स। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो जैसे कि ये सारी तो चीज़ें आपने मुझे बताई कि अवेयरनेस कैसी है, ओरल हाइजीन इम्पोर्टेंट कितना है, और क्या डाइट हमें लेना चाहिए, क्या हाउ ऑफन डू वी ब्रश एंड फ्लॉस, ये सारी चीज़ें आपने बताई। बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे, यू नो, कोई भी इंसान को अगर इफ दे वांट टू फाइंड आउट अ ट्रस्टवर्दी डेंटिस्ट इन द नियरबाई एरिया, वो कैसे हम फाइंड? If you want to find a trustworthy dentist in an area, so first of all, Google. Social media platform is very important, and nowadays Practo.com is there. You can search in nearby in your area any doctor, and you can see the reviews also. Then you can visit the hospitals. You can ask the pharmacist and all the other peoples कि where is a good dentist practicing. तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों से हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेनली तो सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। एंड जैसे ही आप गूगल पे डालते हैं डेंटिस्ट नियर मी, फॉरन आ जाता है, और विद रेटिंग्स आ जाता है, विद रिव्यूज़ आ जाता है। करेक्ट। मेरा भी मतलब गूगल कि- पे आप जैसे ही नाम सर्च करेंगे विद रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह काम किया है ना, और क्लिनिक पे भी काम किया है, तो इस वजह से मेरे उसमें आ जाते हैं। डेंटिस्ट को फाइंड आउट करना स्टार्ट करे केमिस्ट से ज्यादा। हाँ, केमिस्ट। थोड़ा अभी जो है डेंटल अगर आप जी, किसी को जी। करना हो तो सीधा डेंटिस्ट के पास जाए, रादर देन कि भैया साथ वाले केमिस्ट के पास जाके 2-4 रुपए के 10 रुपए 10 रुपए की गोली खाने से अच्छा वो है सिर्फ आपको कि आप अपना टेम्पररी वो वो देगा। टेम्परेरी रिलीफ देगा। आप थॉरो चेकअप अपना कराइए कि कहीं आपको कोई और डिजीज तो नहीं हो रहा है। Sir, what are the top 3 mistakes people make in oral care according to सबसे ज़्यादा तो ये लोग मिस्टेक्स करते हैं कि एक हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। you? दूसरा ये है कि ब्रश प्रॉपर वो नहीं करते हैं सर्कुलर मोशन में जैसा करना Can you say चाहिए। circular? एंड दिस इज सर्कुलर This is- मोशन, दिस इज और हम लोग नॉर्मल हाँ। ऐसे से करते हैं। हाँ, अंदर भी करना है, बाहर भी करना है, ऊपर सर्कुलर मोशन में करना है। 2 बार नहीं करते हैं यूजुअली लोग ब्रश, और थोड़ा हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। हार्ड ब्रश यूज़ करने से दांत का जो इनेमल होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा। उसकी वजह से हमें डेंटल सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, एब्रेजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है हमें हमेशा सुपर सॉफ्ट टूथब्रशेस यूज़ करने चाहिए। लोग फ्लॉस नहीं करते हैं, इस वजह से खाना दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, डेंटल डिके हो जाता है। ये सारी कॉमन मिस्टेक। ये मेरा नेक्स्ट सवाल भी था कि व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ टूथब्रश, और आपने मेरे को ये पहले ही क्लियर कर दिया कि इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड वेरी फेदर गुड कंपनी, गुड कंपनी। गुड कंपनी। वो आप और हमें हर 6 महीने पे अपने दांतों का सॉफ्ट ब्रश ब्रिजल्स वन सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करने हैं, और ब्रश हमें हमेशा हर 6 महीने पे आपको चेंज कर देना है। हर 6 महीने पे आपको चेंज। और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। वन मोर पॉइंट, इट्स वेरी एसेंशियल। हाँ, मैं पूछने वाला हूँ, Because, पेस्ट पे आने वाला बिकॉज था मैं। फ्लोराइड इज अ मेन थिंग, कहते हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और कहते हैं ये फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हमको यूज़ करना है जिसमें फ्लोराइड हो, फ्लोराइड की मात्रा हो। आप बता सकते हैं हमारे रिव्यूअर्स को कि कौन सा वैसे कोलगेट है, सेंसोडाइन है, और कोई मेडिकेटेड है आप जो बताना चाहते हो, जैसे पैराडोंटॉक्स का वो जैसे ब्लड निकलता है, पैराडोंटॉक्स इज वेरी बहुत अच्छा काम करता है वो एकदम से मतलब फर्स्ट डे में ही आपको रिजल्ट दिखाने लगता है। जिनको गम्स ब्लीडिंग का है, पैराडोंटॉक्स इज वन ऑफ द मेडिकेटेड, आप जनरली जाके नहीं लेते हो। ऐसे कुछ आप मेडिकेटेड भी बताना चाहते हो प्रॉब्लम से सेंसिटिविटी के लिए? सेंसोडाइन हो गया। कुछ और भी तो और नहीं तो कोलगेट सेंसिटिव भी बहुत अच्छा है। राइट। कोलगेट सेंसिटिव टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा है। कोलगेट और इन सब के अलावा मेडिकेटेड कुछ आप रेकमेंड करना चाहते हैं? वैसे तो मैं ज़्यादातर सेंसोडाइन और कोलगेट ही लिखती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि उसी से उसी से बहुत हो अच्छा जाता है। रिलीफ हो जाता है। और जो भी आ रहे हैं मार्केट में वो ज़्यादातर जेनेरिक आ रहे मिंट हैं। मिंट वाले होते हैं क्लोजअप के, इसमें ये स्पार्कल है, ये मिंट है, ये सब बकवास है। बकवास है। कुछ क्या- खास इफेक्ट नहीं होता। मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। क्या जैसे नॉर्मल इंसान का जो टीथ होता है वो खाने के और बॉडी टाइप के हिसाब से वो वाइट या येलो जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग, जी जी। लेकिन अगर नेचुरल टीथ को मेरे को प्योर वाइट कराना है ब्लीच के साथ, पहली चीज क्या आप वो रेकमेंड करते हैं, क्या वो करना चाहिए? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं आजकल। तो हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है कि लेज़र डेंटिस्ट्री से भी आप जो है अपनी टीथ Is को, that safe? या इट्स सेफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट डज नॉट स्पॉइल एनीथिंग। आप करवा मैंने ये सकते मिथ हैं। है, पता नहीं क्या सुना है नहीं सुना है कि ब्लीच अगर इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर। अगर चलो किसी ने मन बना भी लिया, ले भी लिया, वो कहते हैं कि जब हम ब्लीच करते हैं तो एक तरीके की परत आप दांतों के ऊपर चढ़ाते हो, करेक्ट है? ब्लीच जब होता नहीं नहीं, परत हम नहीं चढ़ाते हैं। जो गंदगी होती है है उसको उसको निकालते हैं। वाइट कैसे होता है ब्लीच से? वो जो भी जो material- परत जैसे कॉफी वॉफी पीने से चढ़ जाती है हमारे दांतों के उतार ऊपर, देते हो। एक्सेसिव चाय वाय पीने से चढ़ जाती है, तो उसी को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं एक्चुअली उसमें। तो जो है Remove the हाँ, सोडियम परबोरेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है ब्लीचिंग प्रोसेस में। और आजकल तो लेज़र आ गया है डेंटिस्ट्री में, तो लेज़र से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इट इज़ एडवांसमेंट इन डेंटल साइंस कि विद द हेल्प ऑफ द लेज़र यू कैन डू टीथ वाइटनिंग। तो मेरे जो मिथ ये था कि वो कहते हैं कि ब्लीच कराने के बाद कहते हैं कि हम लोग जो है एप्पल को ऐसे काट भी सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉफी नहीं पी सकते नहीं, क्योंकि 4 नहीं। दांत आगे के खराब हो नहीं, ऐसा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तो इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। मोस्टली द पेशेंट्स आर कमिंग विद टू मी
for cleaning process, for scaling process, for bleaching process, for aesthetic purpose. कि मैम मेरा दांत को बहुत सफेद कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए मैम, उसमें कोई I should प्रॉब्लम नहीं है। look good, my teeth should look good. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है, ये मैं इससे कोई भी नुकसान नहीं होता किसी मैं तरीके एविडेंट का। करना चाहता हूँ फॉर आवर व्यूअर्स दैट डॉक्टर ज़बा उस्मानी हैज क्लियर्ड वन मिथ दैट जो पर्सन एस्थेटिकली अपने टीथ को क्लीन रखना चाहता है, वाइट करना चाहता है, ब्लीचिंग करना चाहता है, स्केलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लीनिंग। स्केलिंग के बाद ही होगा जो होगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप है, वो तो कराना ही चाहिए सबको। बट वो करने के बाद भी जो मिथ लोगों के में भैया मेरे को अगर मैंने दांत वाइट कर लिए तो मैं ये खाना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या वो खाना रिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने अभी क्लियर किया है और ये एक नॉलेज बेस है उन जी, सभी जी, लोगों के लिए, एक अवेयरनेस जो आप बता रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं थी वो होती चीज़। है। तो थैंक यू फॉर दैट, जी, आपने वो चीज़ बताई। मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, आपने मेरे को टूथब्रश भी बता दिया, आपने जी, जी, फेस भी बता दिया। जी। सो ये बताइए कि हाउ ऑफन अ पर्सन शुड विजिट टू द डेंटिस्ट फॉर द रेगुलर चेकअप, मतलब कितना? देखिए, a person should visit the dentist every 6 months. Every 6 months. Twice a year. Twice a year at least. And when a baby is born, when a kid is about 6 months old, the first dental visit should be on 6 months old. Sure. Yeah. Or his or her first birthday. ओके। जी हाँ, अगर छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी फर्स्ट डेंटल विजिट जो है वो 6 महीने पे होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डेंटिस्ट असेस करे कि उसके मुंह में कितने दांत आ गए हैं, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं और वो खाली हम डेंटिस्ट ही समझ पाते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पढ़ाया जाता है। करेक्ट, मतलब हर 6 महीने में हर 6 हर एक महीने पे इंसान हमें को एक बार एक बार डेंटिस्ट डेंटल करना विजिट चाहिए, ज़रूर छोटा करना हो चाहिए। या बड़ा हो। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग डेंटल विजिट ज़रूर लेते हैं एवरी 6 मंथ्स। तो ये एक एज अ पार्ट होना चाहिए, होना चाहिए ऑफ आवर लाइव्स, but- लाइफस्टाइल का एक but- पार्ट होना चाहिए। but Indians are ignoring this part. But we have doctors like you who are Yes, spreading, yes. who are coming forward, Yes, stepping yes. forward and spreading the awareness like this, and Yes. by doing such podcast and trying to reach many people Yes, with the yes. help of social media. Yes, yes. And I really appreciate for that effort which you are doing. Even I am highly thankful to you for giving me this opportunity. You're always Yes, welcome, and we are very much obliged that people like you are taking this particular, forum Yes. as a tool to reach out to maximum number of people, because it's a Yes. noble cause which you are doing. Yes, yes. Like I said before, also Yes, Dr. yes. Usmani, that you are doing a very great job. Moving on. Thank you so much. Moving on. What is the link between the stress and oral health? Stress plays a very vital role in oral health. Suppose if a patient is taking anxiety drugs or antidepressant drugs, so it reduces the saliva secretion in our body. So, and saliva is antimicrobial. So that patients are more prone to infections. अच्छा, मतलब कहने का है कि जो पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजाइटी की ड्रग्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी जो सलाइवरी सेक्रेशन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो हमारा जो सलाइवा है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको डेंटल डिके होने के चांस ज़्यादा हैं। हाँ, तो सो स्ट्रेस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द डेंटल डिजीजेस। correct. यस, And what is the main risk of developing oral cancer? the main risk of developing oral cancer, there are various factors of developing the oral cancer. First of all, smoking, tobacco chewing, pan masala chewing, betel nut chewing, supari लोग खाते हैं, then ultraviolet radiations, then what you can say, alcoholism. These are the major factors. Tea and coffee also. No. The people who are like एक दिन में 10 कप जो लेते हैं, हाँ, वो तो बहुत Excessive. नुकसान है। एसिडिटी हो जाती है बॉडी में, बॉडी हमारी बहुत एसिडिक हो जाती है उस टाइम पे। उसमें आपको बहुत कहते नहीं है कि लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सोचो देखो एक चीज से कौन कौन से बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है। बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है तो वो हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर हम एक्सेसिव टी और कॉफ़ी लेते हैं, बिकॉज इसमें बहुत निकोटीन और कैफीन वगैरह होता है तो हमें नुकसान पहुंचाता है वो। Right. And what are the common symptoms of oral cancer, and when should the patient seek medical attention? पता देखिए तो चलता है। जो है कहते हैं बहुत सारे सिम्टम्स हैं ओरल कैंसर की।
अगर कोई पेशेंट के ओरल कैविटी में कोई लंप हो जाता है, कोई एक आप सोचिए एक छाला है जो काफ़ी सालों से या काफ़ी दिनों से नहीं ठीक हो रहा है, काफ़ी महीने हो गए, oral ulcer, a lump, or any elevated lesion, or any enlargement in the oral cavity. These are all the signs of the oral cancer, developing oral cancer. We should suddenly go to the dentist and have a checkup. जी. और अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप तंबाकू पान मसाला खाते हैं और आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होती है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपको दीज आर प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द ओरल कैविटी. ये प्री कैंसरस कंडीशंस ऑफ द ओरल कैविटी है, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में उस चीज को बहुत सीरियसली हाँ सीरियसली लेना चाहिए. इसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं. जी, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप इतने मैं बता रही हूँ. दिस इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस in which mouth opening is restricted. अच्छा, मतलब उसको And point it के बाद नहीं occurs खोल पाएगा. due to the tobacco chewing, basically betel nut chewing, tobacco chewing, and mainly due to the tobacco, because tobacco contains carcinogenic agents which are very harmful. Right. For example, nicotine, formaldehyde, then so many of the carcinogenic agents are present in the tobacco. So we must not take these things, otherwise it will cause cancer. So It can if lead to if the create a patient's cancer. mouth opening is restricted, that means this is a pre-malignant condition. So suddenly he or she should visit the dentist for the checkup. Absolutely. Yes. But thank you, Dr. Sabha Usmani, for explaining us in such a way that अब There are चीजें so many समझ of में the आ रही हैं. precancerous conditions. Leukoplakia. This is a white patch which occurs on the oral cavity in the buccal mucosa. एक सफ़ेद तरीके की परत आपके ओरल म्यूकोसा पे दिखेगी. दिस इज लीकोप्लेकिया. देन दिस इज देन अनदर वन इज एरिथ्रोप्लेकिया. दिस इज अ रेड पैच ऑन द ओरल म्यूकोसा. ये सबसे ज़्यादा कंटेजियस होता है, बहुत जल्दी फैलता है एरिथ्रोप्लेकिया, और यही प्री मेलिग्नेंट लेजन जो होता है वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है. द मोस्ट प्री मेलिग्नेंट लेजन दैट कन्वर्ट्स इनटू द मेलिग्नेंट लेजन इज एरिथ्रोप्लेकिया. जी. Got it. And what role does human papilloma virus play in cancer development? Yeah, human papilloma virus also plays a very important role in the development of the cancer. So human papilloma virus 16 leads to the what you can say जो हमारा neck का cancer होता है, basically oropharyngeal cancer, which connects the oral cavity towards the pharynx. Right. So human papilloma virus plays a very important role in the oropharyngeal cancer. Right. सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए आजकल वैक्सीन भी आ गई हैं. अच्छा. अगर हम चाहें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए हम तो आगे उसको इन्फेक्टेड restrict ना कर हो सकते हैं. तो हम वैक्सीन ले सकते हैं. So Sabha, I have another question that what are common treatment options for patient diagnosed with oral cancer? जो कॉमन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ आजकल वो है जो है कहते हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और जो है कहते हैं सबसे पहले तो हम डायग्नोसिस करेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, और डायग्नोसिस करने के लिए हमें FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करना पड़ेगा, बायोप्सी वगैरह करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा उसकी रिपोर्ट से. वो है मतलब ये सारे टेस्ट, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं. फिर उसके बाद रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, इन सब चीज़ों से ट्रीटमेंट चलेगा. इसमें भी होता है कीमो? हाँ, इसमें भी कीमोथेरेपी होता है, इसमें भी रेडिएशन थेरेपी होता है. वो तो कैंसर है तो और बाकी कैंसर की दवाएं वगैरह चलती रहेंगी, और साथ साथ में एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. और एक इस लेवल तक पहुंचना, जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक पहुंचना, उसका जो पहला स्टेप होता है वो ये ओरल हाइजीन ही होता है कि अगर उसने अपने दांतों को सही तरीके से, इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू? No, not at all. I'm talking about the tobacco and betel nut chewing and smoking and all that. And alcoholism, इसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है, because these substances contain harmful carcinogens which are responsible for cancer development. लेकिन हाँ, एक और बात हम बताना चाहेंगे, बहुत important है, कि अगर we are not able to maintain our oral hygiene, so we may develop heart diseases. तो जो लोग टोबैको, स्मोक, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें करते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं,
बहुत सीरियस है, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जो डॉक्टर सबा उस्मानी यहाँ पे बता रही है वो एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है, वो हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, वो हमें बताना चाह रही है अपनी इंडस्ट्री से उन बातों को जो एक डॉक्टर को ज़्यादातर पता होता है, एक पेशेंट, एक लेमैन इंसान, एक कॉमनर को नहीं पता होता। तो जो अभी आप पॉडकास्ट अगर देख भी रहे हैं, इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कहीं पर भी अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को एक एज अ रूटीन अगर आप ऐड करते हैं, एक ओरल हाइजीन को, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, एक बदलाव अच्छा होगा और अपने लाइफस्टाइल में एक अच्छी और पॉजिटिव चेंज होगा। एक कॉज मैं और बताना चाहूँगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो ज़्यादातर जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से फैलता है, बाय ओरल सेक्स की वजह से भी फैलता है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से फैलता है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या ओरल सेक्स जो हम करते हैं तो उसकी वजह से जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसकी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसकी वजह से भी कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जैसे ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 की वजह से होता है, तो इसकी एक वैक्सीन आती है तो उसको हम लगवा सकते हैं जी। तो इसके लिए भी हमें चाहिए कि हम अवेयर रहें, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जो पार्टनर्स जो होते हैं, दे लाइक टू एंजॉय एवरी काइंड ऑफ सेक्स, तो चाहे वो इंटरकोर्स हो या ओरल सेक्स, because it's a part of pleasure, they like to, It should be protected. it should be protected, that is It should be protected. and should be clean and hygiene. It should be clean and hygienic. Yes, yes. It's a very important factor. वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये जनरली भी मुझे ऐसा लगता है कि एक हाइजीन फॉलो करना, आई थिंक डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर जी। इंसान के लिए, चाहे वो जी। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। जी। अपने आप को हम अपना जितना साफ सुथरा रखेंगे, मेरे ख्याल से हम उतने ही एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करेंगे और बिल्कुल। बीमारियों से बीमारियों से दूर रहेंगे। बेस एक साफ सुथरा इंसान, नॉर्मल इंसान, और जो साफ सुथरा नहीं है उससे तो अलग ही दिखे, अलग अलग ही दिखे। दिखे। और अपने आप में आप ये देखें confidence ना कि भी- एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसके दांत बहुत चमकते हुए होते हैं, बहुत साफ होता है, तो उसको देख के बहुत सूदिंग एंड रिलैक्सिंग लगता है। Exactly. और एक पेशेंट आता है जिसके मुंह से बहुत बदबू आ रही होती है और उसके दांत सब सड़े हुए होते हैं और साथ में उसके दांतों पे स्टेन्स होते हैं टोबैको के, और उसकी माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसको देख के कितना अंदर से घिन आती है। तो आप सोचिए कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Exactly. बिल्कुल। एंड एक सवाल और है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सीनेशन इन प्रिवेंटिंग HPV रिलेटेड ओरल कैंसर? So HPV is human papilloma virus. So it causes the oropharyngeal cancer and the oral cancer. So vaccines इसकी आ गई है and we must get to the physician and get ourselves vaccinated. कोई भी वो तो कोई भी करवा सकता है, वैक्सीन लगवा सकता है। And what are some lifestyle changes that can that could reduce the risk of developing oral cancer? क्या वो चीज? We can do a lot of lifestyle changes. What you can say, first of all, we must maintain the oral hygiene. Then we must change our habits if we have tobacco, or we must quit smoking. We must not take gutka, tambaku, pan masala. We must take care of our health. We must eat healthy and nutritious food. We must take vitamin C in our diet. We must take calcium, vitamin D. It's very much essential factor for keeping our oral health. And how can dental professionals contribute to oral cancer awareness in their communities? जैसे आप एक professional है, so what is that commitment to the society according to you? If our patients come to us, we must convince him or her to maintain their oral hygiene, and we must tell everybody about the what you can say complications of using tobacco, pan masala, and gutka vagara, and then smoking. We must tell each and everybody. And then community programs हमें organize करने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में फैल सके। और मैं तो कैंप वगैरह कर रही हूँ जगह जगह जाके इन कोलैबोरेशन विद राज फाउंडेशन, जिससे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके इसके बारे में। और जितना हो सके आप लोगों को बताइए इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों से, और हाँ, बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेंटल अवेयरनेस कैंप,
इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और लोगों जैसे अभी आप ये कर रही हैं, जी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवेयरनेस। जी जी लोगों को पता चलेगा कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सबा उस्मानी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है बिल्कुल। और वो हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है और दिन बर दिन बढ़ रही है। जी। बहुत एजुकेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें अब हमारे विद इन रेंज में जी, बिकॉज ऑफ जी। द इंटरनेट। जी जी। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्हाट आर द न्यू एडवांसमेंट इन डेंटल साइंसेज? There are so much of new advancement in the dental sciences. पहले क्या हुआ करता था कि लोग पेशेंट आते थे तो एक हमारे पास एक छोटा सा एक्सरे होता था, हम उस एक्सरे से देख सकते थे, लेकिन अब तो हमारे पास ओरल कैमराज आ गए हैं, देन कैट कैम टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, देन व्हाट यू कैन से MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, देन वी हैव लेज़र डेंटिस्ट्री। लेज़र डेंटिस्ट्री से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। We can cut cavities, we can do teeth whitening. There are so many of the procedures we can do with the help of the laser dentistry. Then हमारे पास जो है क्या कहते हैं नैनो पार्टिकल्स से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स से हम जो है टिश्यू रीजेनरेशन कर सकते हैं। We can take the help of the silver nanoparticles in the tissue regeneration, in the regeneration of the periodontal tissues, in the regeneration of the gingival tissues. Then stem cell therapy हमारे पास है। stem cell therapy से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उससे भी we can what you can say tissue regeneration में बहुत ज़्यादा help करती है। periodontal tissues में then gingival tissues में हमारा बहुत ज़्यादा help करती है हमें। pulpal tissues, पल्पल नेक्रोसिस अगर किसी को हो गया है तो हम स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा टिश्यू रीजेनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांसमेंट। तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स मतलब अब आज के टाइम पे अगर कोई इंसान अगर इन सब चीज़ों से परेशान है तो उसको फिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? नंबर वन, देयर आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स लाइक यू आर अवेलेबल एवरीवेयर। सेकंड, देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच यू जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट इज देयर टू प्रिवेंट थिंग्स। कि अगर कुछ इंसान जो कि कुछ देरी में पहुंचे डॉक्टर के पास या फिर कुछ शुरू होने से पहले पहुंचे, दोनों ही केसेस में यू गाइज आर देयर टू हेल्प दैट पेशेंट, राइट? तो वो ज़रूर आप करते हैं। एक सवाल और पूछना है मुझे आपसे बिफोर आई कंक्लूड दिस कि अब मेरे को आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। जैसे अभी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और हम वहाँ जाके देखते हैं तो सिनेमा हॉल में शुरू होने से पहले एक ज़रूर ऐड आती है जी, राइट? क्योंकि कोई फीमेल दिखा देते हैं, कोई मेल दिखाते हैं, वो दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही घिनौना ऐड रहता है। इन्होंने और ऐड मैंने पर्सनली नोटिस करा जब भी वो ऐड आते हैं लोग इधर उधर देखते हैं, वो उस चीज़ पे अपने आप नोटिस नहीं करते। नोटिस नहीं करते। तो जो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो अवेयरनेस वो कर रही है, लेकिन वो अवेयरनेस हो नहीं रही। हो नहीं रही। लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यार ये तो अभी यही वाला ऐड है, चलो पॉपकॉर्न ले। 1 मिनट के बाद जो है खत्म ही हो जाएगा। हाँ, खत्म ही हो जाएगा या जो है। यार लोग बोलते हैं अरे यार मूवी स्टार्ट करो, ये क्या दिखा दिया, अब मेरा मूड खराब कर लेकिन हमें उस चीज पे एम्फसाइज करना चाहिए Right. कि लॉट ऑफ पीपल्स आर डाइंग ऑफ ओरल कैंसर। Correct. I am talking about the incidence of the oral cancer. So near about 80,000 to 1 lakh of people in India are dying of the oral cancer. Every year they are dying of the oral cancer. And World Health Organization has declared that in India about 5 lakhs of the people are suffering from the oral cancer. This is a recent report. Would you like to give on this platform Yes. the government of Delhi or government of India, maybe from the level of government, if they can or they could derive some kind of, a campaign which actually gave a strong message, the importance of oral cancer, the hygiene, the awareness. Would you like to, convey this message to the Yes, government? yes. If Yes, I please would go like to convey the message to our government कि आप डॉक्टर्स का एक पैनल ऑफ टीम बनाइए, क्या कहते हैं, और उन डॉक्टर्स को आप गांव-गांव में ले जाइए और जगह-जगह ले जाइए जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, द पीपल्स आर नॉट एजुकेटेड। तो वी मस्ट टॉक टू द पीपल्स, टॉक टू दोज पीपल्स एंड अवेयर अबाउट द ओरल कैंसर, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओरल कैंसर। और अगर किसी को भी एक शुरुआत होती है तो वो जल्द से जल्द अपना इलाज कर सके, जिससे कि वो किसी का भी घर तबाह ना हो। बिकॉज अगर शुरुआती स्टेजेस में अगर ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो वो 84% मोर्टालिटी रेट है, लेकिन अगर आपने लास्ट में अपना ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कराया जो कि 4th स्टेज होता है,
तो only there is chances of 34% chance there is That is the mortality figures. rate. So what you can say, I would like to place a request to the government कि they should make a panel of the doctors. They should go to the villages, to the housing societies, and they should teach the pupils about the oral cancer, about the complications of the oral cancer, about many of these things. About they should spread the dental awareness among patients, Got it. because so many of the people are dying of the oral cancer, and near about 80,000 to 1 lakhs of people every year they are dying of the oral cancer. So it is preventive. It is preventive, but the stage should be early, Early. and it should not be the last stage. If it is cured in the early stage, the mortality rate is 84%. Got it. So this was the message which you want to convey. Ji. And जो whatever the podcast that just happened, there are a lot of learning जो at least मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा समझा ओरल कैंसर के बारे में और ओरल हाइजीन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, जो कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी जो हम लोगों को समझनी भी चाहिए, जो एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल कॉमनर हम क्या कर सकते हैं. पहली चीज़ तो ये कि हम ब्रश ट्वाइस अ डे करें, सॉफ्ट ब्रिजल के टूथ ब्रशेस को यूज़ करें, और टूथपेस्ट जो वो यूज़ करें, जैसे आप Medicated toothbrush, fluoride toothbrush, राइट Toothpaste. पेस्ट यूज़ करें हम, और fluoridated. उसके बाद फ्लॉस करें हम Hmm. रेगुलरली, Hmm. और उसके बाद हम माउथ वॉश को यूज़ करें Dental checkups कराएं. और डेंटल चेकअप कराएं आप एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार, और ट्वाइस अ ईयर आप कोई एक डेंटिस्ट नियर बाई फाइंड आउट करके अच्छे डेंटिस्ट के पास आप जाएं, एक रेगुलर चेक कराएं. अगर आपके ज़्यादा गंदे हैं तो एटलीस्ट स्केलिंग से शुरू करें, एक आप क्लीनअप ले. और इस तरीके से अगर आप अपने मुस्कुराहट को, अपने डेंटल केयर को सही रखेंगे, तो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, आपकी स्माइल की तरह होने वाली है. तो जो अपनी बुरी आदतों को छोड़. और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे. द स्मोकर्स हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, द ड्रिंकर्स हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, प्लीज टेक दिस सीरियसली, नॉट फॉर योर सेल्फ, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली. जो एड्स हम देखते हैं, जो घिनौने फोटोग्राफ्स हम जो स्मोकिंग पैकेट्स में भी देखते हैं, वो कोई मजाक नहीं है, वो रियलिटी है, वो सच्चाई है. आई डोंट स्मोक, तो मुझे पता नहीं है कि स्मोकिंग करने से क्या मज़ा आता है, नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता ज़रूर हूँ कि बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को छोड़ना. छोड़े नहीं तो एटलीस्ट रिड्यूस तो करें. रिड्यूस कर सकते. रिड्यूस कर सकते हैं. उससे 2 फायदे हो गए. एक तो आप अपने आप को पैसे भी भी क्लीन बचेंगे. करोगे, दूसरा आप अपने देश को भी साफ सुथरा रखोगे, क्योंकि गुटखा खाने के बाद अमूमन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई बॉक्सेस तो नहीं दे रखे कि थूकना वहाँ है, तो लोगों ने इस रोड को ही एक बहुत बड़ा डस्टबिन बना रखा है और वही थूकते हैं, अपनी वहीं कंट्री को साफ नहीं और रखते. अपनी कंट्री को भी साफ नहीं रखते. तो ये स्वच्छता अभियान का भी एक पार्ट बनता है कि इफ़ यू आर अ स्मोकर, आप पहले उस चीज़ को रिड्यूस करें और एक रिस्पॉन्सिबल स्मोकर बने कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें और थूकें इधर उधर नहीं. मेट्रो के कोनों में थूकने की जगह नहीं होती है, वो सीढ़ियों के कोनों में. उस चीज़ से भी आप प्रिवेंटिव हो जाते हैं. और स्पेशली जो कैब ड्राइवर्स जो अगर आप हमें देख रहे हैं, वो शीशा नीचे करके या दरवाज़ा खोल के जो आप थूकते हैं, तो वो भी वो बिना भी देखे किसी के बिना ऊपर भी देखे पड़ जाता है. किसी के ऊपर भी पड़ जाए. जैसे अभी डॉक्टर सबा उस्मानी ने बोला कि कॉन्टेजियस होता है, वो फैल जाता है यार थूकने पे, आपके थूक से भी वो दूसरे बंदों को भी फैल जाता है. तो कई सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट से समझते हैं और इस पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छा, लर्निंग. एक मैसेज और भी मैं देना यस चाहती हूँ. प्लीज. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहती हूँ राज फाउंडेशन की तरफ से, और बल्कि हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. हम लोग गाँव जाएंगे और ओरल कैंसर के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस देंगे, और अबाउट डेंटल अवेयरनेस भी हम फैलाएंगे वहाँ पे. जो भी दिल्ली के आसपास छोटे छोटे गाँव वगैरह हैं, उसमें हम जाके फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारा कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं. सबा उस्मानी, डॉक्टर सबा उस्मानी अपनी टीम फाउंडेशन, राज फाउंडेशन के सोनिया लांबा जी के साथ में. सोनिया लांबा जी के साथ वो जो करने जा रही हैं, काफ़ी अच्छा नोबल कॉज है, और डेफिनेटली हम उसको भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसके भी क्लेम्स आप लोगों तक पहुंचाएं विद दिस शो, और कोशिश करेंगे कि ऑर्फनेजेस में भी जाएंगी और बच्चों को डेंटल हाइजीन के बारे में भी बताएंगे. एब्सोल्युटली. सो काफ़ी अच्छा लगा डॉक्टर सबा Thank you so उस्मानी much जी, आपसे बात फॉर करके. इनवाइटिंग मी. यस, थैंक यू फॉर कमिंग. और आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है हम लोगों को, जी, थैंक यू. और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं समझ थी पहले, वो आज हमें समझ आई है. और मैं समझता हूँ हाँ, बहुत सारे लोगों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं. एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कवर किया. और कैसे डायग्नोस होता है कैंसर, और क्या क्या शुरुआत में
उसके साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, वो लोगों को नहीं पता था Exactly. इसके बारे में। बट थैंक यू सबाजीत फॉर कमिंग Thank इनटू आवर शो मोस्ट वेलकम। और ये सब बताने के लिए, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस द एंटायर एपिसोड with Dr. Sabah Usmani about the dental care, about the oral cancer awareness. And I'm going to see you on the next episode with another guest on Gossip with Great. Till then, keep rocking, keep smiling, and take care of yourself. Thank you.